Okay, good morning to all of you, and here we go again. Nice, cool, slightly foggy weather outside. Window के बाहर दिख रहे हैं, and chilly weather is obviously most welcome weather. I'm sure you can enjoy a bit, isn't it? Chalo, as we were discussing about properties of matter specific to solids, let's continue. And the first topic of discussion is on stress. So we talked about yesterday that stress is equal to force per unit area. But what is the difference? Difference is that if we apply F and F on both sides, then at any section, if I look at any section of it, there will be an area cross section A, and the stress sigma will be F upon A, where F is of course the force being applied and A is the area of cross section. So that's the point. तो ये होगा स्ट्रेस के वजह से ही सब कुछ होता है, मतलब डिफॉर्मेशन वगैरह जो भी होता है. Now how much deformation is taking place? That is measured by another quantity, and that is strain. So this is called as stress, and read as sigma. It's a Greek alphabet, I mean, and this is called as stress. So this is what we call as stress. So read as sigma. Sigma is F upon A. Now, due to this stress, what will happen is that there will be some kind of elongation. I mean, of course, it depends on the type of stress. This is tensile stress, so there will be elongation. If there is a compressive stress, there will be compression, isn't it? So let's say this is the original length, suppose. This is the original length. And after giving some force, it increases in length on both sides. So this new length is suppose L plus delta L. So new length is L plus delta L. Original length is suppose L. So that means the increment in length is what? Delta L. We define a quantity called as strain. Strain, the general definition of strain is change in dimensions upon original dimensions. Okay. So a general definition of strain, that is epsilon, is change in dimension upon original dimension. Okay, change in dimension upon original dimension. Right? So that is your strain. Now, when I say dimensions, what do you mean? It could be length, it could be some kind of area, change in area bhi ho sakta hai, and it could also be change in volume. So accordingly, we have three types of strains. I mean, there are more strains also, but three primary strains, and that is longitudinal strain, superficial strain, that is area, and volumetric strain. So accordingly, we write it as epsilon L, that is longitudinal strain. So longitudinal strain क्या हो जाएगा? Now epsilon L is equal to delta L by L. But that's what I was writing here. क्योंकि हम लोग सिर्फ length की बात कर रहे हैं. So therefore we are talking about only one strain, and that is epsilon is equal to delta L by L. This is called as relative change in length, and that is why this does not have any unit. In fact, none of these strains have units. Why? That's because, see, this is longitudinal strain, change in length by original length. This is called as superficial strain, means change in area upon area. So this is called as सर ये ई का नाम क्या है? हाँ ई ये जो लिखा है अच्छा स्ट्रेन में. ठीक है समझ गया. Read as epsilon. इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है. तो हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन L, एप्सिलॉन A, and one more will come epsilon V. So epsilon A is equal to what?
delta A by A. So that's epsilon A, means strain on area, or you can say superficial strain. Okay. Lastly, we have epsilon V, that is called as volumetric strain. Obviously, it would mean change in volume by original volume. See, none of these strains have any unit. We also define another strain interestingly, and that is called as lateral strain. Okay. But then that's not so much required right now, but जब definition दे ही रहे तो सारा कर ही लेते हैं. Lateral strain का मतलब बताता हूं मैं. Epsilon lateral. Now you see, let us say I have applied a force on a rubber band. Now we all know from experience that if you pull a rubber band like this and elongate it, you will see that it becomes thinner. That means, though you are not pressing from the sides, yet you will see that as you elongate the rubber band in terms of length, you will see that the radius is also decreasing, or you can say the diameter is also decreasing. The reverse also happens. Take at the eraser that you use commonly for erasing whatever mistakes and all. That if you hold like this and then press it, suppose like this, you will see that it bulges in the middle. So therefore, if you elongate something, it reduces in diameter or radius. And if you compress something, it expands, or you can say bulges out, or you can say increases in radius or diameter. So therefore, though you are applying force only along the length, yet it does lead to a small change in the sideways dimensions also. Sideways dimensions are called as lateral dimensions. And that is why this is called as epsilon lateral. That is lateral strain. That is equal to delta R by R. However, you must also realize one thing, that I am not consciously doing delta R. See, I can do delta R consciously also. How? Take a cylindrical rubber or something like that, and then hold it from the sides, and then press it like this. ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं ना कई बार इस टाइप का. तो वो वाला प्रेसिंग करो तो उसका रेडियस घट जाएगा. So I'm not doing that. I'm applying force only along the length, but it is accompanied by a change in the radius or diameter automatically, or you can say naturally. That's what we see. So वो वाला strain हम लोग बोलते हैं lateral strain. So this is called as lateral strain. अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा ना, देखो ये ओरिजिनल है और बाद में so if you look at the initial radius, that is R, okay, R, and this is delta R. Okay, so epsilon lateral is equal to delta R by R. Have a look. That's the point. And longitudinal strain, as I said, delta L by L. तो उसका तो मैंने बता ही दिया. This is how the figure is. Superficial strain is like this. Let's say there is an area. This is A, and then it expands. So this part is delta L. So this is delta L. Similarly, let us say this has a volume of V, maybe, and let's say this is delta V. वैसे अलग फिगर भी बना सकता था, मैंने एक ही फिगर में बना दिया, मतलब that's all. So in that case it will become what? Volumetric strain. So that is the idea of strain, change in dimensions upon original dimensions, and that's why it is always dimensionless. Okay. Now you know what are we interested in this chapter? We are wanting to know properties of materials. What do you mean by properties of materials? For example, let's see, if I want to compare iron and let's say copper, or iron and steel, or steel and aluminum, or some kind of a comparison. How do we do? So there has to be some kind of a material property. For example, let's say we want to compare heaviness of an object, of a material. To compare heaviness of a material, what should be the criteria? बोलो जरा, क्या criteria होना चाहिए? Heaviness of material को compare करने के लिए क्या होना चाहिए? Okay, there are questions also.
First question is from Aditya Mathur, and that is, will there be winter break? Well, this question is as mysterious to you as is to me. Even I don't know whether there is winter break or not. मैं भी इसलिए अभी तक कहीं टिकट्स बुक नहीं करा है. So I can share that secret with you. Generally मैं हर साल जो है ना कहीं के लिए टिकट बुक करा देता हूँ during that break period अभी. But this time because I'm not sure myself, so I've not booked tickets as yet. ठीक है ना? Well, the second is from Krish, and that is आपको questions भी discuss करने थे. हाँ, मुझे याद है. ठीक है, questions भी discuss करते हैं. Krish says कि we need break because of a lot of pending things. Bhavya says कि उसका answer शायद inertia, weight of material of same volume. Aryanta said weight of material of same volume. ठीक है, I think that appropriate answer will be by what? Density. Heaviness को measure करने के लिए, I think an appropriate quantity would be density. है नहीं? तो हर aspect को measure करने के लिए उसके corresponding कोई ना कोई property हम लोग use करते हैं. As I said, heaviness को measure करने के लिए appropriate quantity would be what? Density. कितना भारी है? Density. Bhavya has given an interesting answer, and that is inertia. Not a bad answer really, but inertia is more related to motion actually. ठीक है ना? So therefore, I'm not accepting inertia as the answer, but it's not a bad guess. It's a good guess. Krish and Aditya both have given the answer as density. Aryant has given an indirect answer, which is also meaning density only. Chalo, ठीक है, whatever. So the topic is not density, of course. What I'm trying to say is that for every parameter we have some property associated. Similarly, our chapter is based on, if you remember, we discussed this, strength of materials. To measure strength of materials, we have a parameter or quantity called as Young's modulus. This is called as Young's modulus of elasticity. Okay? Young's modulus of elasticity. By the way, elasticity, I hope you are aware of it already, and that is elasticity is basically the property by virtue of which a material opposes any deformation in itself. ये elasticity होता है. So therefore, a material which is tougher is supposed to be more elastic. Okay? A material which is tougher is supposed to be more elastic. A material which is soft, which can be easily pulled and so on, is supposed to be less elastic. कई बार common perception अलग होता है. ठीक है ना? ध्यान रखना. चलो, Young's modulus of elasticity क्या है? Now we define a parameter called as Y. By the way, Young का जो नाम है, that is because of Thomas Young. He was one of the great scientists of the yesteryears. In fact, Thomas Young की contribution न्यूटन से कोई कम नहीं है. मतलब न्यूटन अगर multifarious fields में contribution किया है ना, so has Thomas Young also. He has done contribution in physics in many areas of physics. However, कई बार हो जाता ना कि तेंदुलकर के सामने लक्ष्मण या द्रविड़ दब जाते हैं. But I can assure you, if you look at all the statistics, of course, Tendulkar has the maximum number of runs and the maximum number of average runs also. I'm not denying it. But अगर crunch situation में देखोगे, crunch situation मतलब सब विकेट गिर चुके हैं, 6 विकेट डाउन हो गया, 300 स्कोर अभी बचा है टेस्ट मैच में, या इनिंग्स मतलब फॉलो ऑन भी हो चुका है. इमेजिन करो, फॉलो ऑन हो चुका है और उसके बाद मैच जिताना. इस तरीके के जो क्रेडिट जाता है, मेनी टाइम्स दिस हैज बीन डन बाय द्रविड़ एंड लक्ष्मण. लेकिन चक्कर क्या होता है कि उस समय तेंदुलकर यूज्ड टू बी द किंग ऑफ क्रिकेट, तो उनके सामने इनके अचीवमेंट सारे दब जाते. तो यही हुआ है थॉमस यंग के साथ. थॉमस यंग वाज ए कंटेम्पोरेरी ऑफ न्यूटन. अब वो न्यूटन इतना वर्ल्ड फेमस थे उस टाइम कि उस समय के और कोई साइंटिस्ट का नाम ही नहीं लिया जाता. Unfortunately, though they might have contributed a lot, and Thomas Young is a good example. He had done many contributions in science, but somehow, unfortunately, I don't think anybody has heard his name till date. तो अगर न्यूटन का कंट्रीब्यूशन 100 है, तो यंग का कंट्रीब्यूशन 60-70 से कम नहीं होगा इन साइंस में. लेकिन कोई जानते ही नहीं, और न्यूटन को हर कोई जानता है. चलो, इट्स लाइक दैट. सो से तेंदुलकर वर्सेस लक्ष्मण या तेंदुलकर वर्सेस द्रविड़. चलो, यंग्स मॉडुलस को डिफाइन किया गया है
as stress by strain. Stress क्या है? F by A. So this will be equal to F by A. Strain is delta L by A. यानी इसको इधर ले जाता हूँ, या एक काम करो, F is equal to AY by L into delta L. ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन लिखूंगा और एक एक्सप्रेशन लिखूंगा also delta L is equal to FL by AY. ठीक है, so that is also another expression. Fine. Before I go ahead with the discussion on this, ठीक है ना, Dev has commented कि Dravid was the wall of the test team. हाँ, Dravid was known as the wall, and Lakshman was known as what? Magic. ठीक है. I mean, I don't know how many of you are. I mean, I've been watching cricket for a long time. अगर बैटिंग के स्टाइल देखना चाहते हो, वेरी स्टाइलिश बैट्समैन एंड ऑल, देख के बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वेरी एलिगेंट एंड ऑल, तो मैं कुछ नाम ले रहा हूं, इनके वीडियोस देख सकते हो. वन इज डेविड गावर. दवड़े नहीं बोला मैंने, डेविड गावर ऑफ इंग्लैंड, वेरी एलिगेंट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. मतलब वो एक स्ट्रोक खेलते हैं ना तो देख के मजा आता है. लेफ्ट हैंड बैटिंग में एक और है, वो है सौरव गांगुली, इंडिया. राइट हैंड बैटिंग अगर देखना चाहते हो, एलिगेंट, स्टाइलिश, एक्सट्रीमली, तो देखना मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो भी इंडिया के ही. ठीक है ना. मैंने सुना था कि जहीर अब्बास भी काफी स्टाइलिश थे, बट जब मैंने देखा तो मुझे उतना स्टाइलिश लगे. तो खैर एनीवे, तो मोहम्मद अजहरुद्दीन ऑफ इंडिया, सौरव गांगुली लेफ्ट हैंड बैटिंग, और डेविड गावर ऑफ इंग्लैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग. जबरदस्त स्टाइलिश बैट्समैन. एंड ऑफ कोर्स वीवीएस लक्ष्मण तो खैर अल्टीमेट चैंपियन थे. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके जैसे रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है. चलो, डेल्टा इज नॉट FL by AY, but before I do with questions, I mean, let me ask a simple question, and that is, suppose मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया है, ऐसे कर, एट केजी मास हैंग किया मैंने. भाई, तो स्प्रिंग बैलेंस S1 का रीडिंग क्या आएगा, S2 का रीडिंग क्या है. और दूसरा क्वेश्चन और है, एंड दैट इज सपोज एक वॉल से मैंने ऐसे स्प्रिंग बैलेंस रखा है, S3 S4, और उससे भी हैंग किया है 8 केजी मास. तो ऐसे कुछ समझ लो, व्हाटएवर, ये वॉल है, इसमें भी S3 और S4 का रीडिंग क्या आएगा. और सपोज मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया है और उसको दोनों तरफ फोर्स दिया है 80 न्यूटन, तो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग क्या आएगा, S5. और लास्ट में एक वॉल है और उसमें भी मैंने S6 का रीडिंग पूछ रहा हूं. इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन ओनली वन साइड, एंड दैट इज 8 न्यूटन. ठीक है, तो तुमको बताना है S1 S2 S3 S4 S5 S6 के रीडिंग्स. ठीक है, ये 8 केजी मास है किया गया, इधर एक ही तरफ 8 केजी है, यहाँ पे दोनों तरफ 80 न्यूटन फोर्स लगाया गया, और यहाँ पे एक ही तरफ 80 न्यूटन फोर्स लगाया गया. तुमको बताना है S1 S2 S3 S4 S5 और S6 के रीडिंग्स कैसे कैसे आएंगे. आर्यन, तुमने पहले का आंसर दिया है 8 और 8, और बाकियों का दिया 80. सर वो 80 है, वो 8 गलती से. वैसे क्रिकेट का पिटारा खुलते ही कुछ ओपिनियंस भी आने लगे, एंड दैट इज ओम पाटेकर सेड कि नो वन कैन मैच सर विवियन रिचर्ड्स. सी ओम, आई विल एग्री फुल्ली विद यू व्हेन इट कम्स टू बीइंग एग्रेसिव. ठीक है ना, एंड बीइंग बोल्ड, तो विवियन रिचर्ड्स का कोई वो नहीं है. वैसे एक दो है, ऐसे बात नहीं है. जैसे श्रीलंका के कालुवितर ने, फिर ऑस्ट्रेलिया के गिलक्रिस्ट, दे आर लाइक क्लोज बाय. बट हाँ, एक जो नॉन चैलेंज था ना, देन प्लेइंग क्रिकेट,
वो विवियन रिचर्ड्स के जबरदस्त थे, अनकंपैरेबल वेस्ट इंडीज का ऑफ कोर्स बैट्समैन। बट आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टाइल। देखा होगा मैंने बार बार स्टाइल 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 कह रहा था। स्टाइलिश बैट्समैन के अंदर ये सब आते हैं, डेविड गावर, सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है ना, और भी है, बट लाइक आई जस्ट नेम्ड 4-5 ऑफ देम। आर्यन सेज कि सहवाग फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली देखो एग्रेसिव ना, एक होता है कि कूल होके एग्रेसिव होना वो एक अलग चीज है, और एक होता है एग्रेसिव का एक नॉन चैलेंज, एक अलग क्वालिटी है। मैंने दिस कैन बी डिबेटेड अ लॉट। देव सेज कि यान बेल भी तो है। देयर आर मेनी, ठीक है ना। ओके चलो, आई थिंक लेट्स नाउ आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली कई सिचुएशंस मैंने दिया होगा, बट सारे स्प्रिंग फोर्सेस के रीडिंग आएंगे ऑल आर 80 न्यूटन। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये एस्पेक्ट देखना कई बार खुल के आएगा कि फोर्स का रीडिंग कहां पे कैसे आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 8 केजी लटकाया हुआ है, तो यहाँ पे 80 न्यूटन होगा। यहाँ पे एक ही तरफ 8 केजी लटकाया हुआ है, लेकिन फिर भी 80 न्यूटन होगा। भले वॉल है इधर और मास नहीं लटका हुआ, but this wall also has to keep the force of 80 Newton to keep the system in check or balance. So therefore, कई सिचुएशंस मैंने दिया यहाँ पे, तुम दोनों तरफ 80 न्यूटन लगाओ, या एक तरफ वॉल के साथ स्प्रिंग बैलेंस लगा के फिर 80 न्यूटन से खींचो। इन सारे सिचुएशंस में all will have the reading of what? ना 80 न्यूटन। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, और अगर सेल्फ क्लियर कर सकते हो तो ऑफ कोर्स नो दिस थिंग बेटर देन दैट, ठीक है। ओके, क्रिश सेज की जब हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो मैं भी आपको एलिगेंट बैटिंग दिखाऊंगा। चलो कोई नहीं, सो मे बी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट मेंशनिंग डेविड गावर, सौरव गांगुली, कृष्णा अगर एंड मोहम्मद अजहरुद्दीन इन दैट केस। ठीक है ना। अच्छा, भव्य सेट की S5 बता दो, S5। ओके देखो, एक्चुअली पता क्या होता है, कई बार ना हम लोगों को पता क्या लगता है कि अगर एक वॉल है और 80 न्यूटन दिया तो स्प्रिंग का 80, और अगर दोनों तरफ पुल कर रहे हो तो 80 160 हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। एक स्प्रिंग बैलेंस पे जो फोर्स आता है ना, तभी आता है जब दोनों तरफ से फोर्स हो। इमेजिन करो, एक स्प्रिंग बैलेंस रखा है तुमने टेबल पे और तुमने फोर्स लगाना शुरू किया, तो वो टिकेगा ही नहीं, वो क्या होगा, शिफ्ट होकर चला जाएगा। इन दैट केस रीडिंग नहीं आता। रीडिंग उसका तभी आएगा जब दोनों तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हो, तभी उसके अंदर रीडिंग डेवलप होता है। क्योंकि देखो उसके अंदर एक स्प्रिंग है। तुम अगर एक स्प्रिंग को खुद से सोच के देखो, एक स्प्रिंग को टेबल पे रखो और स्प्रिंग को ऐसे खींच के लेके चले जाओ, तो क्या होगा, स्प्रिंग डिस्प्लेस हो जाएगा, बट स्प्रिंग पे कोई रीडिंग नहीं आएगा। स्प्रिंग में कोई रीडिंग नहीं आएगा। रीडिंग तब आएगा जब तुम दोनों एंड से खींचोगे इसको। दिस इज अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट, बट आई नो दैट दिस एस्पेक्ट समटाइम्स कंफ्यूजेस एंड समटाइम्स पुट समबडी ऑफ बैलेंस। आई मीन, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये सारा बताया। ये इस चैप्टर से रिलेटेड तो है नहीं, ये तो न्यूटन्स लॉ के चैप्टर का रिलेटेड है, लेकिन ये कंसेप्ट देखना बीच बीच में इस चैप्टर में आएंगे, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है ना। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बेटे, एक डाउट है। कुछ पूछ रहे थे सर? डाउट है, डाउट। हाँ बोलो बोलो। जैसे पहला वाला केस ही है, अगर देखिए उसमें 2 स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग में मतलब जैसे राइट वाले स्ट्रिंग है तो टेंशन उसमें 80 न्यूटन होगा, बीच में एक स्ट्रिंग है वो भी टेंशन लगेगी, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आंसर? ना, ये देखो ना, ये स्प्रिंग बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है? इधर 80 न्यूटन है और इधर 80 न्यूटन है, तभी बैलेंस्ड है। और ये जो धारा है ना बीच में, इसमें इस तरफ भी 80 न्यूटन है, ये देखो इस तरफ। अब इस स्प्रिंग पे भी इधर 80 न्यूटन है, तो ये सारा स्प्रिंग पे जो रीडिंग आ रहा है वो पता क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों तरफ 80 न्यूटन अप्लाई किया गया। तो देखो याद रखना एक चीज कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग उतना ही होता है जितना कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स तुमने दोनों तरफ से दिया ना। कि अच्छा, अगर मैं ऐसे करूंगा कि एक तरफ से 100 न्यूटन दे दूंगा, एक तरफ से 80 न्यूटन, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यू माइट से क्यों? एक जन 100 न्यूटन लगाएगा, एक 80 न्यूटन, दो जने लगा देगा? लगा ही नहीं सकता। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये स्प्रिंग बैलेंस को हम लोग मासलेस मानते हैं। तो अगर 100 और 80 लगाओगे तो नेट फोर्स 20 आ गया, मास तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इनफाइनाइट। यानी अगर ऐसे सिचुएशन बनाओगे तो तुरंत इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। क्यों? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी कुछ भी कर लो,
दोनों तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होंगे स्प्रिंग बैलेंस, ये मस्ट है। हाँ ऑफ कोर्स अगर स्प्रिंग बैलेंस पे कोई मास वास लगा दो तो एक अलग बात है, मैं तो एक एज्यूम स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं जिसको हम लोग मासलेस मानते हैं, ठीक है ना, दैट्स ऑल। चलो आई थिंक नाउ आई होप दैट्स ओके, अगर कुछ और है तो जरूर मैसेज से पूछ लो। भव्या इज दैट पॉइंट क्लियर? फिफ्थ वाला जो पूछ रहे थे, फिफ्थ और सिक्स्थ एक ही, फिफ्थ और सिक्स्थ में डिफरेंस पता क्या है, यहाँ पे दो जने अप्लाई किया या मैंने ही दोनों हाथों से अप्लाई किया 80-80, और सिक्स्थ वाले में क्या है कि मैंने 80 न्यूटन एक तरफ अप्लाई किया और इन द प्रोसेस दूसरे 80 न्यूटन क्रिएट हो जाएगा, कहां से, वॉल की वजह से, तो इधर भी 80 न्यूटन, इधर से भी 80 न्यूटन वॉल में दिया होगा एंड सो ऑन, बाकी अपने आप माइक्रो लेवल पे एनालाइज कर लो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन नाउ वी विल टॉक अबाउट इलॉन्गेशन, ठीक है। But before elongation, I would like to focus on one more thing, and that is, you know, I have written two expressions. One is this F, and other is delta L. चलो delta L तो एक फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। F का एक्सप्रेशन देखो, एक रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शन, यंग्स मॉडुलस और इनिशियल लेंथ, ये कांस्टेंट होता है, so therefore this can be treated as a constant. And is it delta L the elongation or compression? अभी बताओ, स्प्रिंग पे भी ऐसे नहीं होता, स्प्रिंग भी तो ऐसे होता ना, F is equal to kx ना, यूमर से नहीं, वहां तो माइनस होता था, माइनस यहाँ पे भी है, मैंने लिखा नहीं, खुद सोचो ना, अगर एक रॉड को ऐसे या एक रबर बैंड या कुछ भी चीज को ऐसे खींचोगे तो वो भी तो उल्टे डायरेक्शन में खींचेंगे, इसलिए माइनस एक्चुअली यहाँ पे भी है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन लिखा है। बाकी अगर मैं स्प्रिंग के साथ कंपेयर करता हूं तो F is equal to kx, x वहां पे इलॉन्गेशन और कंप्रेशन होता था, बस मैंने नोटेशन चेंज कर दिया, डेल्टा लिखा, क्या फर्क पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई this quantity is called as equivalent spring constant। ये डेफिनेशन बड़े डेलिबरेटली दिया गया, क्यों, क्योंकि मैं स्प्रिंग के एनर्जी के एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज करना चाहता हूं। So therefore if I ask you what is the potential energy stored in the rod, तो क्या होगा, हाफ k डेल्टा एल का स्क्वायर, स्प्रिंग का होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह तो डेल्टा एल लिख रहा हूं, तो यानी इज इक्वल टू हाफ के मतलब y बाय l इनटू डेल्टा एल का स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब देखो इसमें एक चीज और, ये जो u है ये क्या है ना, हम लोगों ने वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में तो हाफ के एक्स स्क्वायर को लिखा था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये स्प्रिंग तो है ना, इसको बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इट इज बोर्न आउट ऑफ इलास्टिसिटी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो हर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया अकॉर्डिंग टू द फोर्स, अगर स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम लोगों ने यही सीखा। अभी कौन सा फोर्स चल रहा है, इलास्टिक फोर्स, वो एक अलग कोइंसिडेंस है कि उसका एक्सप्रेशन स्प्रिंग के जैसे ही आता है, so this is elastic force and that's why this will be called as elastic potential energy। पर इसको मैं एक और फॉर्म में लिखना चाहता हूं, and that is half into ay delta l into delta l, sorry ay delta l by l। now why am I writing it, जरा ध्यान से देखो, ay delta l by l, is it f, so I can also write it as f into delta l by 2, ठीक है। अच्छा अब मैं एक चीज और करना चाहता हूं, and that is called as kappa, इसको प्रोनाउंस किया जाता है कापा, इट्स नॉट एग्जैक्टली के तो ऐसे होता है, ये है कापा, यानी इसमें कुत्ते के पूंछ के जैसे लगा दिया जाता है ऐसे, so that is called as kappa। what is kappa? kappa is elastic potential energy डेंसिटी। वैसे कापा का मीनिंग इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी नहीं होता है, कापा का होता है एनर्जी डेंसिटी, एनी एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, है ना, सब कुछ एनर्जी डेंसिटी है। इस केस में क्योंकि इलास्टिक रिलेटेड है इसलिए हमने लिखा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। तो वो क्या होगा ना, एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट, U by वॉल्यूम। नाउ U is what, F delta L by 2। तो मैं एक काम करता हूं, वॉल्यूम बोलते क्या होगा, अगर कोई सैंपल ऐसे होगा
और उसका लेंथ ये हो गया और इसका एरिया ए है मान लो, उसका वॉल्यूम क्या होगा, A into L, तो हाफ F by A into delta L by L. What is F upon A? Stress. What is delta L by L? Strain. So you have another formula that is half into stress into strain. यानी अब एक फॉर्मूला आ गया कापा, that is energy density is equal to half stress into strain. तब हमने दो तीन फॉर्मूले कर लिए हमने, एक तो यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, which leads to this, which in turn leads to this and also this. ठीक है, and finally kappa, वैसे तो एनर्जी डेंसिटी का भी एनर्जी का भी एक्सप्रेशन नहीं, ये भी फॉर्मूला ही है। नहीं भाई सारे बाप रे इतने सारे फॉर्मूले हो गए, क्या करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है ना, इतने सारे याद थोड़ी करना पड़ता है, हमें तो बस ये याद करना है, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाता है, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स गेम। और प्रैक्टिस करते करते थोड़े बहुत याद हो जाएंगे, और अब नहीं भी याद हुए तो अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट नो द सोर्स फॉर्मूला ऑफ दिस एंड एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस। हां ये याद करो, kappa is equal to half into stress into strain, तो बेसिकली याद तुमको दो करना है, ये वाला और एक वाला, बाकी सब उसी से डिराइव हो जाता है, अलग से याद करने का कोई जरूरत नहीं। चलो नाउ लेट मी मूव ऑन। Suppose I give you the first question based on this, and that is let us say मैंने क्या किया, एक रॉड ऐसे लिया और एक और भी ऐसे लिया, तो इसका 2a 2y 2l और इसका a y l और मैंने f लगाया, तो ये रॉड 1 और ये रॉड 2, ठीक है। अब एक काम करो, 1 और 2 के रेशियो निकालो, किस चीज का ना, फोर्स रेशियो, तो 1:2 यानी F1:F2 है ना, F1:F2। फिर स्ट्रेस रेशियो यानी सिग्मा 1:σ2, डेल्टा एल रेशियो डेल्टा 1:डेल्टा 2, फिर एप्सिलॉन 1:एप्सिलॉन 2, फिर है U1:U2 और kappa 1:kappa 2. This you can consider as some kind of a warm up question. You can consider this as a warm up question, ठीक है। तो फोर्स का रेशियो, स्ट्रेस का रेशियो, इलॉन्गेशन का रेशियो, स्ट्रेन का रेशियो, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का रेशियो। गो अहेड। अभी आंसर करने की जरूरत नहीं है, अभी फटाफट सबको इन्यूमरेट कर लो, फिर हम एक एक करके फटाफट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देख लो अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, फोर्स तो दोनों ने इक्वल है, आई कैन इन फैक्ट कंसीडर दीज टू एज रॉड्स इन सीरीज, ठीक है। तो ये आएगा, तो यानी ये तो हो जाएगा 1:1, सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब देखो 1 का क्या होगा ना, F by A और इसका F by 2 है, तो यानी F by A is to F by 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2:1। डेल्टा L is F L by AY और इसका F L by AY, तो ये भी हो जाएगा 2:1। क्यों, F L by AY, इसका F L by AY, तो एक नीचे 2 रह जाता है ना, तो इस तरीके से आई थिंक दैट विल डू। डेल्टा एल बाय, अच्छा स्ट्रेन, तो इसका डबल हुआ डेल्टा L1 by L और डेल्टा L2 by 2L, यानी हो जाएगा 4:1, ठीक है। एनर्जी देखो, एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी है, हाँ, F into डेल्टा L by 2, तो F तो सेम है, तो जो डेल्टा L का रेशियो है वही बन जाएगा एनर्जी का रेशियो, है ना, U1:U2। तो डेल्टा L का रेशियो क्या है, 2:1, F सेम है ना, तो देयरफॉर एनर्जी का रेशियो भी 2:1, ठीक है।
Okay, some answers are coming. Aryant has given the answer. Dev has also given the answer. ठीक है. Lastly is kappa. Kappa क्या है? The energy density. तो एनर्जी का तो ये हो गया. ऊपर से वॉल्यूम इसका कम है. इसका वॉल्यूम क्या है? 2a और 2a. तो यानी 4a. एक तो एनर्जी डबल है, इसका ऊपर से al से डिवाइड होगा और इसका डिवाइड होगा 4al से. तो 2 is to 1 by 4. That is 8 is to 1. यानी 8 is to 1. तो चेक कर लो सारे रिजल्ट्स. ठीक है. Panda sir, good morning. गुड मॉर्निंग. Sir, I just wanted to clarify. Krish has he joined? हाँ, तो आई थिंक देहम यू आर राइट. 1 2 is to 1 2 is to 1 4 is to 1. एक्चुअली देहम तुमने 5 क्वेश्चन का आंसर दिया. अब इसमें 6 है. लास्ट का तो तुमने ठीक दिया. देना, लेकिन सर वो आ गया था, वो दिया नहीं. हाँ, एक सीक्वेंस में कहीं टूटा है. चलो ठीक है, आंसर तो सही आ रहा है. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन. ठीक है ना. लेट्स मूव ऑन नाउ टू मोर सीरियस स्टफ. Suppose I ask you a question, that is, what is the elongation? So let's say there is an object of density rho, radius r, and length l, Young's modulus y. So question is, find elongation due to own weight. अपने ही वेट के वजह से. ओके, ध्रुव has asked कि वो kappa 1 is to kappa 2 कैसे आया. देखो एनर्जी डेंसिटी. ध्रुव kappa 1 कैसे आएगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम. तो एनर्जी 2 is to 1 है और वॉल्यूम है 1 is to 4. यानी ये 2 by 1 होगा और 1 by 4 होगा. तो 2 is to 1 by 4 आ गया. तो बाकी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 is to 1 आ गया. ठीक है. हाँ जी. तो इसमें दिया हुआ रेडियस r, डेंसिटी रो, यंग्स मॉडुलस y, लेंथ l. फाइंड द एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट. तो देखो, अगर मैं ऐसे करके लटक जाता हूं कहीं पे पैरेलल बार पर, ऐसे करके लटक जाता हूं, इन दैट केस क्या होगा? द बॉडी विल रिलैक्स. ठीक है ना. Well, we have got an answer already, and that is rho g Young's modulus. Rho g Young's modulus is one answer. और कोई आंसर? इतने आंसर्स कम क्यों आते हैं? थोड़ा वो करो, बी एक्टिव. Okay, Aryant has given density L square by y. यानी rho L square by y. ओके, इसका मतलब रेडियस से कोई मतलब ही नहीं है. रो जी एल स्क्वायर बाय वाई. ओके, एक और आंसर आ रहा है. रो जी एल स्क्वायर बाय वाई. ओके, श्रेयस हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर. अच्छा, आर्यन सेज कि मेरे में इसमें भी जी आएगा. ठीक है, सबका आंसर लगभग यही आ रहा है. मोस्टली आंसर्स दैट वी आर गेटिंग इज रो जी एल स्क्वायर बाय वाई ही ज्यादा आंसर आ रहा है. ठीक है ना. देहम, अनुषा, अंश, ऋषभ, आर्यन, everybody has given लगभग, everybody has given the approximately the same answer. Sania, Shreyashi, आदित्य तुम्हारा आंसर अलग है थोड़ा सा. एक बार दोबारा चेक करो, मतलब बाकियों से अलग है ना. That does not mean कि किसका गलत है किसका सही है. Okay, Som has also given the answer. Deham has also given the answer. चलो ठीक है. Let me tell you first of all how is this question a bit different from others. देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, डेल्टा L is equal to FL by AY. I'm sure what you are working out is like this, that F के जगह mg पुट करो क्योंकि उसका वेट है. यानी हो गया mg L by AY. And then mg के जगह हम लिख रहे हैं pi r square L rho, है ना, into g into L by A. A बोलते क्या है ना, pi r square into y. तो pi r square तो पूरे कैंसिल हो गया, तो आ जाता है rho g L square by y. मैं इसका मतलब तो समझ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा अंतर है. अंतर पता है क्या है?
कि हमने जब डेल्टा इज इक्वल एफ एल बाई ए वाई लिखा था तो उसका सिचुएशन क्या था? सिचुएशन हमने ऐसे लिया था, एफ और ये ऐसे लिया था, यानी दोनों एंड पे सेम फोर्स काम कर रहा है। बट इसमें क्या दोनों एंड पे सेम फोर्स काम करेंगे? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। नाउ टेल मी व्हाट इज द लोड दैट इज देयर? देखो एफ बोलते क्या? लोड। लोड मतलब ये बताओ इस पॉइंट पे यानी लोएस्ट पॉइंट पे लोड कितना है? बताओ। मेरे इसमें ना, हाँ, तो जो मैं कह रहा था इस दैट कि यहां पे प्रॉब्लम पता क्या है कि हमने जब डिसाइड किया था यहां पे तो दोनों तरफ फोर्स एफ था और हर क्रॉस सेक्शन में एफ था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे ये बताओ कि व्हाट इज द लोड एट द लोएस्ट पॉइंट? इस लोएस्ट पॉइंट पे लोडिंग क्या है? देव हैज नॉट क्विकली चेंज द आंसर। ओके, लोएस्ट पॉइंट पे बिल्कुल सही है, आदित्य ने पहला आंसर दिया, दैट इज लोएस्ट पॉइंट पे लोड क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। खुद सोच के देखो, अगर मान लो एक पैरेलल बार है और उसमें मैं ऐसे लटक जाता हूं और मान लो ऐसे लटका हूं तो मेरे लोड कहां पे आएगा? वो तो हाथ पे आएगा, जहां पे पकड़ कर रखा हूं मैं, यहां पे आएगा लोड, यहां पे। अब मान लो लटका हुआ पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी बॉडी बॉडी, यहां पे मान लो पैर के नीचे वाला पार्ट है, एंकल से नीचे, वहां पे क्या लोड है? कुछ नहीं, वो तो ऐसे हवा में लटक रहा है, उसके नीचे कुछ थोड़ी लगा रखा है मैंने। सो देयरफॉर इस केस में सिचुएशन टोटली अलग है। इस केस में यहां पे लोड जीरो है और यहां पे लोड हो जाएगा mg। देयरफॉर इस बार का जो लोडिंग है वो जीरो से लेके mg। अगर मैं इसका वेरिएशन बनाऊंगा तो क्या आएगा? ऐसे वेरिएशन है, ये mg है और ये जीरो है और यहाँ पे लोड ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा करते करते लीनियर वेरिएशन है क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है, दैट्स व्हाई। तो देयरफॉर इस बार हमें f नहीं, इस बार हम f एवरेज लेंगे। तो f एवरेज क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरो, वहां पे mg, तो एवरेज लोडिंग क्या हो जाएगा ना? mg/2। तो इस केस में क्या होगा? mg/2, यानी सिर्फ एक 2 आएगा, एक 2 आएगा। वो लोड आप फोर्स देख रहे हैं? ठीक है ना? Aryan has asked a question, that is what is the definition of load? लोड अलग से कुछ नहीं, लोड मींस फोर्स एक्चुअली। मैं लोड इसलिए बोल रहा था कि कुछ लटका हुआ है, as if something has been loaded, इसलिए बोल रहा था, but don't get worried by the word load. Load means force. So what I'm talking here is what? Force. तो force variable है, force uniform नहीं है, तो therefore 0 से लेके यहां तक एवरेज किया mg/2। अभी कोई कुछ और पूछ रहे थे शायद, because after that I would like to go somewhere else। हाँ बोलो। सर हो गया क्लियर। हो गया। अच्छा सर वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। वेटिंग, अच्छा हो, सॉरी, हाँ मुझे भी लग रहा था कि हाँ। तो अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग कैसे पता चलता है कि वेटिंग रूम में कोई है? लेट्स मूव ऑन नाउ। हाँ, तो जो मैं कह रहा था इस दैट अभी इसमें अच्छा मैसेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आर्यन ने एक और क्वेश्चन पूछा है, एंड दैट इज वोंट द लोड एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास? तो देखो, याद करके देखो, जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि सारा लोडिंग का जो इफेक्टिव लोडिंग पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है। लेकिन यहां पे याद रखना, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे पता क्या है कि इस सेक्शन का लोडिंग अलग है, इस सेक्शन का लोडिंग अलग है, इस सेक्शन का लोडिंग अलग है। कोई भी सेक्शन लेते हो तो लोडिंग इसका अलग है। But even if you, not many of you are asking question ki about this mg/2, but I will raise it myself, and that is you may or may not be very convinced with this averaging. You देखो, averaging is not a very simple job. Averaging is a very complex job. समझ लो ना? जैसे तुमने क्लास 10th में पढ़ा, वही एवरेज करते हैं, फिर उसके लिए मीन अलग मेथड होता है, मीडियन अलग मेथड होता है, मोड अलग मेथड होता है। So lots of kinds of average are there. इनफैक्ट क्लास 12th में जाते जाते देखना, तुम लोग मैथ्स में भी कई तरीके का एवरेज सुनोगे या सीखोगे, ठीक है ना? तो देयरफॉर सम ऑफ यू और मे बी ऑल ऑफ यू मे नॉट बी कन्विंस्ड विद दिस एवरेजिंग दैट आई हैव डन mg/2. यू मे और मे नॉट बी कन्विंस्ड। सो इन सच अ केस व्हाट टू डू, है ना? एक्चुअली इसका जो मेथड है ना, इसका एक्चुअल जो मेथड है वो ये है ही नहीं। ये जो मैंने किया ना, ये इसका ट्रू मेथड नहीं है, इसका ओरिजिनल मेथड नहीं है। इसका ओरिजिनल मेथड क्या है ना? इसका ओरिजिनल मेथड ये है कि सपोज ये रॉड है, मैं यहां पे एक सेक्शन लेता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ y एंड ऑफ स्मॉल थिकनेस
dy, ठीक है, y dy। इस पे लोड क्या होगा? ना देखो मास पर यूनिट लेंथ इज m by l, तो y लेंथ का लोड क्या होगा? ml by y। तो जरा खुद सोचो, किसी भी सेक्शन में लोड क्या होता है ना, उसके नीचे वाले पोर्शन का वेट, तो m into g। इस छोटे से सेक्शन का जो लोड है, फोर्स है, वो है m into g, और इसी फोर्स के कारण क्या होगा? उस पे इलोंगेशन होगा। तो ये जो छोटा सा सेक्शन मैंने dy लिया ना, इस पे कुछ उससे भी छोटा सा एक इलोंगेशन होगा, which is what? fl by ay। तो ये f हो गया, l बोलते हैं dy और ay। Now what is this? This is the small elongation of the element that I have chosen, that is dy। अब अगर टोटल इलोंगेशन निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करो, यानी इंटीग्रेट करो तो यू गेट द टोटल इलोंगेशन 0 to l, दैट इज व्हाट इज डेल्टा। अब इसको अगर करोगे तो देखना my करके सब खत्म हो जाएगा, mg by ALY into y dy 0 to l। तो y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? y square by 2 यानी l square by 2, तो उसको करके तब जाके ये आता है mg by 2 mgl by 2ay। ये एक्चुअल इसका एक्चुअल मेथड है, ठीक है। बट देन यू माइट से कि ये मेथड यहाँ पे कैसे काम कर रहा है एवरेजिंग वाला? ना देखो, एवरेजिंग वाला इसलिए काम किया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है और इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन काम कर रहा है। अगर ये नॉन लीनियर होता तो कोई एवरेजिंग काम नहीं करता, फिर सिर्फ हमें इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। ध्यान रखना, ठीक है। चलो, आई होप यू गॉट द आइडिया नाउ, तो आई कैन रब इट ऑफ। तो इससे एटलीस्ट ये आइडिया लग गया कि हाँ, अगर हर सेक्शन में अगर सेम स्ट्रेस या सेम फोर्स है तब तो सीधे फॉर्मूला लगा दो FL by AY, और नहीं तो शायद एवरेजिंग से कर सकते हो। और अगर एवरेजिंग पे डाउट है तो आई थिंक द मोस्ट कंफर्म मेथड इज व्हाट? बाय इंटीग्रेशन। पर फिर एक प्रॉब्लम ये आता है कि इंटीग्रेशन में समय ज्यादा लगता है, तो अगर एवरेजिंग कहीं पे है और अगर तुम वो पहचान सकते हो तो नेचुरली तुमको फायदा मिलेगा। चलो, लेट्स नाउ सॉल्व अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, 2m 3m 2a 4l and 3y। इसके नीचे एक और है, and that is 2m 3a by 2 2l and 2y, और इसका एक नीचे एक और है, and that is m a l y। ठीक है, फाइंड आउट टोटल इलोंगेशन। क्रिस्टल सेट की कुछ फोर्स तो ऊपर वाला सेक्शन भी लगा रहा होगा, उसको लोड क्यों नहीं बोलते हैं बेटे? देखो, वो वहां पे ना एक्शन रिएक्शन ऐसे होगा, पर ये वाला जो फोर्स है वो कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे ना? वो उसके नीचे वाले हिस्से से कैलकुलेट होगा। तो ऐसे नहीं कि ऊपर फोर्स नहीं है, ऊपर भी तो फोर्स होगा ऑब्वियसली। काउंटर पार्ट कहां जाएगा? एक्शन रिएक्शन का पेयर कहां जाएगा? तो लेकिन हम इसको विजुलाइज कैसे करेंगे ना? अगर ये रॉड है, अगर एक सेक्शन है, तो उस सेक्शन पे जो फोर्स आएगा वो इक्वल और ऑपोजिट ऐसे होगा। उसमें से ये वाला फोर्स कौन सा है ना? उसके नीचे वाले सेक्शन का वेट, और उस वेट को ऊपर वाले लोड ने या फोर्स ने उसको होल्ड करके रखा। तो देखो, मैंने एक्चुअली यही निकाला, वो जो तुम सोच रहे हो ना, मैंने वही निकाला। पर कैसे निकाला? मैंने उसके नीचे वाले के हिस्से का हेल्प लेके निकाला। तो दैट्स द लॉजिक। चलो गो अहेड, 3m 2a 4l 3y 2m 3a by 2 2l 2y and this is m a l y। अब तुमको निकालना है elongation of the total elongation, total elongation। अच्छा हाँ, भव्य जस्ट रिमाइंडेड मी अबाउट द सीपीटी क्वेश्चन। तो मैं एक काम करता हूं, मैं फटाफट वो वाला क्वेश्चन बता देता हूं जिसमें आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गॉट इट समहाउ रॉन्ग, ठीक है ना? उसमें कुछ क्वेश्चन ये था, अब तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट समहाउ लाइक दिस, दैट एक ऐसे था और ऐसे कुछ था, और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, और उसमें एक ऑप्शन था द एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग एट ऑल पॉइंट्स, शायद मैग्नीट्यूड था, magnitude of acceleration of string at all points is same।
अभी बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? कुछ यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा, बट मान लो कुछ कैपिटल एम और यहाँ पे स्मॉल एम, यानी अनइक्वल मास है, लेट्स से। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? आई थिंक इस क्वेश्चन को सब लोगों ने, या शायद 2 या 3 छोड़ के सब लोगों ने गलत आंसर किया, तो मुझे लगा इस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करना चाहिए। तो ये सिचुएशन, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? अब प्रॉब्लम है ना, 2 क्वेश्चन हो गए, एक इधर भी है उधर भी है। ओके, क्रिश हैज सेड ट्रू। इसमें यही ऑप्शन को लेके दिक्कत आया, मैंने देखा ना ऑप्शन को एनालाइज करके, और बाकी के तो आंसर सही आए। ओके, ओनली वन आंसर। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? पोलिंग भी करा सकता था पर टाइम कम है। ओके आर्यन से जब आप कह रहे हो और हमने ट्रू लिखा है तो जरूर फॉल्स होगा, इसलिए आप कह रहे हो। चलो ठीक है, ये रिवर्स लॉजिक बहुत ज्यादा लगाया जाता है कि आपने पूछा इसका मतलब उल्टा आंसर हो रहा होगा अरे मैं उल्टा कराने वाला हूं क्या? कुछ जो है वही ना बताऊंगा या जो मुझे आता है वही ना बताऊंगा चलो, श्रेया सेज कि ट्रू, आदित्य माथुर सेज ट्रू, पार्थ सेज ट्रू, हर्षित ट्रू, अंश ट्रू। ओके, अब सुनो मैं बताता हूं इसमें मिस्टेक क्यों हुआ है। बाय द वे इसका आंसर क्या है? नहीं, फॉल्स है। नाउ यू माइट फाइंड इट वेरी फनी, F for funny rather than F for false है ना? बट मैं बताता हूं कैसे। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा इसका एक्सेलरेशन कितना और इसका एक्सेलरेशन कितना, तो क्या है? अगर इसका a ऊपर है तो a नीचे है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है यहां जाके, कि इसका इस तरफ तो ये होगा बट एक सेंट्रीपिटल भी तो होगा, वो सेंट्रीपिटल बाकी जगह थोड़ी है। तो अगर ये बोला जाए कि स्ट्रिंग का लटका हुआ पार्ट्स में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम है तो ट्रू हो जाता, पर इसने पूरे स्ट्रिंग के बारे में बोला, तो उस पूरे स्ट्रिंग में ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी है, ये वाला। तो पार्ट 1 में और 2 में अगर होता तो इन दैट केस आंसर ट्रू आता, लेकिन उस स्ट्रिंग का ऐसे उधर से भी एक जा रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, उस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एडिशनल लगेगा, यहां पे नहीं लगेगा। तो यहां का जो मैग्नीट्यूड, इनफैक्ट मैं एक चीज और कह सकता हूं कि अगर इस वाले क्वेश्चन का अगर a मानो या a डैश मानो, तो बताओ a डैश और a के बीच में क्या रिलेशन होगा? यहां पे क्या लगाऊंगा? इक्वल टू, ग्रेटर और लेसर। क्या लगाऊं? इक्वल टू, ग्रेटर और लेसर। मतलब इसका a है, इसका a डाउनवर्ड्स, इसका a अपवर्ड्स, और वहां वाले क्वेश्चन के लिए सपोज मैग्नीट्यूड है a डैश, मैग्नीट्यूड a डैश है। वेक्टर फॉर्म में तो हर जगह अलग होगा, वेक्टर फॉर्म में तो हर जगह अलग होगा, है ना? तो आदित्य माथुर इज नाउ सेड यस ग्रेटर देन, आर्यन सेज ग्रेटर, अंश ग्रेटर। अब देखो सब लोग ग्रेटर बोल रहे हो है ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है? a डैश इज ग्रेटर देन a। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने देखा था कि सब लोगों ने गलत किया है, आई थिंक दो या 3 जने शायद सही किया, शायद 2 जने। अब मुझे नहीं पता वो तुक्के से सही हो गया या ठीक से सोच समझ के किया है, बट क्योंकि बहुत मास स्केल में गलत था तो मुझे लगा कि शायद कुछ सोचने में ही गलती हुआ होगा, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, दीज आर ऑल लर्निंग थिंग्स, एवरीबॉडी लर्न्स एट सम स्टेज और द अदर, ठीक है? फाइन, सो दैट वाज द मेन क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू डिस्कस। एक और भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना? अब टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। एक काम करें, इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी देख लेंगे। मैं आज एक काम करता हूं, उसको शेयर कर ही देता हूं ग्रुप में, आपको सबके मार्क्स, ठीक है ना? तो उसके बाद देख लेना जो भी एरर है उसके अंदर। अच्छा, टोटल इलॉन्गेशन क्या होगा ना? एक आंसर वैसे आ चुका है। क्रिशेस आज की क्या हम लोग टॉर्शनल पेंडुलम, देखो टॉर्शनल पेंडुलम के लिए मैंने बताया था कि टॉर्शनल पेंडुलम ऐसा सिलेबस में नहीं है, बट करना चाहता हूं मैं बता देता हूं। इक्वेशन क्या है? टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा। इसको हम लोग कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, और थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अल्फा क्या होगा? माइनस के बाई आई इनटू थीटा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, यानी टी क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई टी। बस क्वेश्चन खत्म। तो टॉर्शनल पेंडुलम इतना ही है। और बाय द वे टॉर्शनल पेंडुलम है क्या ना? ये है इस तरह ये, और मान लो यहाँ पे एक डिस्क लगा है ऐसे। अब क्या करो, इस डिस्क को ऐसे करके ट्विस्ट कर दो, ट्विस्ट करके छोड़ दो, तो देखना वो क्या होगा, देखना ऐसे करके ऑसिलेट करते रहेगा, और ऑसिलेशन का जो प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग होगा। बस क्वेश्चन खत्म।
इतना ही है टॉर्शनल कंडक्टर, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि इट्स नॉट देयर, ठीक है ना। अच्छा एनीवे लेट्स क्विकली सॉल्व इट। इसका इलॉन्गेशन क्या होगा ना, mgl by 2ay, तो mgl by 2ay प्लस इसका एवरेज लोडिंग कितना आएगा ना, यहां पे mg लोड है, यहां पे 3 mg लोड है, तो एवरेज लोडिंग क्या हो गया 2 mg। इसको देख के मत बताना ये कोई यार्डस्टिक नहीं है, ठीक है ना। अब वो तो बाय चांस से कोइंसिडेंस की बात हो जाता है, बट एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे mg, यहाँ पे 3 mg है ना, टोटल लोड 3 mg, तो एवरेज लोडिंग क्या हो जाएगा mg plus 3 mg by 2 यानी 2 mg। तो देयरफॉर अब मैं लिखूंगा 2 mg, अब तो मैंने एवरेज कर दिया, इनटू l by a इनटू y प्लस यहाँ पे लोडिंग कितना 3 mg, यहाँ पे कितना है 6 mg, तो 3 mg plus 6 mg by 2 यानी 4.5 mg, यानी एवरेज लोडिंग इसका 4.5 mg, जबकि देखो ये तो 3 mg, इसलिए उस मास से कोई मतलब नहीं है, वो एवरेज लोडिंग अपने दूसरे केस में डिनोमिनेटर में 4y आएगा सर, 2 into 3a by 2 into 2y आएगा ना। नहीं, अब तो हमने एवरेजिंग कर दिया ना, या तो फिर ऐसे एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, चलो समझ गए, mg by 2 into l by a, यानी अब हम f एवरेज लेके कर रहे हैं, तो f l by a y यही फार्मूला है, बस f के जगह f एवरेज, तो f एवरेज है mg by 2, इस केस में एवरेजिंग क्या है ना mg plus 3 mg by 2 यानी 2 mg, तो f l by a y, और इसका भी एवरेजिंग क्या हो रहा है 3 mg 6 mg by 2 यानी 4.5 यानी 9 by 2, तो अब मैंने एवरेजिंग कर लिया 9 mg by 2 into l 4l fl by ay 2a into 3y, बस that's it, यानी mgl by ay कॉमन लो, तो 1 by 2 plus 2 to cancel 4 by 3 plus 3 का 9 का 3 हो गया, 2 और 2 का 4, इसको कैंसिल हो गया प्लस 3, आई थिंक दैट्स द आंसर, वो देखो जरा सारा कैंसिल हुआ, ठीक से चलो, तो 6 का एलसीएम हो गया, यानी mgl by 6ay into 3 plus 8 plus 18 है ना, तो 18 plus 8 26, 29 by 6 is equal to 29 by 6 mgl by ay, ये आंसर, ठीक है। वेल क्या क्या आंसर आया देखता हूं जरा, ओके 13 by 6 आया, एक आया 16 by 3 एक आया आदित्य के, फिर अरियंत के 8 mgl by ay, फिर जसराज के 6 mgl by ay, फिर गलत हुआ है बोला है, and then 13 by 6 is from श्रेयसी, आदित्य ने बाद में करेक्ट कर दिया 29 by 6, सोम 55 by 6, जसराज 29 by 6, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो एक इनिशियल एक हो सकता है कि हिंट मिल गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, चलो ठीक है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी विल हैव टाइम फॉर। सीपीटी का मैं एक बार और दोबारा भेज दूंगा, क्या भेजूं, वो मैट्रिक्स भेज दूंगा फिर जो है ना पूरा कि क्वेश्चन वाइज कैसे कैसे एंड ऑल, तो अकॉर्डिंगली यू नो यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ, और अगर कुछ करेक्शन होगा तो वो देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी निष्ठा के साथ प्रॉब्लम है, उसने बाद में कुछ हुआ था अपलोड एंड ऑल, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। Ariyant has asked about what is the syllabus of CPT4. CPT4 में इसमें क्या था, इसमें तो रोटेशन और ग्रेविटेशन था ना, तो CPT फिर रहेगा SSM तो रहेगा ऑब्वियसली, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी थोड़ा रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो यानी उसके नेक्स्ट वीक है, तो देयर वी हैव लॉट ऑफ टाइम, तो सॉलिड्स तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी SHM और सॉलिड्स पूरा, ठीक है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा, और देखते हैं अगर लिक्विड्स तब तक कुछ हो पाता है तो, ठीक है ना, विल सी, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, विल कैरी ऑन, ठीक है ना, नॉट टुमारो बट ऑन मंडे। बिफोर आई गो फिर से रिमाइंडर दूंगा इज दैट आई होप थिंग्स आर हैपनिंग ऑन अ स्मूथ वे
and you are like making that progress chart and all, I would expect on Sunday another round of the progress chart. ठीक है, please send it on Sunday. Fine. चलो आज के लिए इतना ही।